اسلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو واقعہ کربلا کی حقیقت، تاریخی حوالہ جات کے ساتھ ساتھ ایک تفصیلی مضمون بتاؤں گا۔ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات حسرت آیات کے بعد مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ یہ اختلاف کا واقعہ ثقیفہ بنے ساعدہ کے مقام پر رونما ہوا۔ اس مجلس میں جلدی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں مہاجرین و انصار کی فضیلت کو بیان کیا، اور آخر میں فرمایا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الائم من قریش، خلیفہ قریش سے ہوگا۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، فوراً اختلاف ختم ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ لیکن تمام مہاجرین و انصار نے بال اتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ آپ بال اتفاق خلیفہ منتخب ہو گئی۔ خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں مہاجرین و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عام مشورہ لیا کہ میں اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتا ہوں، افتردونو کیا تم پسند کرتے ہو؟ فقال الناس قد رضینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا ہم راضی ہیں، خصوصاً جلیل القدر صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا۔ ہر ایک نے پوری آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ببانگ دھل کہا، لا نرضی الا ان یکون عمر بن الخطاب، ہم عمر بن خطاب کی خلافت کے سوا کسی کو پسند نہیں کریں گے۔ عام و خاص کے مشورہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے نصرانی غلام ابو لولو فیروز نامی شخص نے نماز فجر کی حالت میں خنجر مارا، جس سے آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلی خلافت کے لیے 6 آدمیوں کے نام لے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی گئی ہیں۔ 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ 2، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 3، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ 4، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ 5، حضرت سعد رضی اللہ عنہ 6، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ ان 6 میں سے میرے بعد جس کو چاہو خلیفہ بنا لو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان 6 کا خصوصی اجلاس ہوا، 4 خلافت سے دستبردار ہو گئی، صرف 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے امیدوار باقی رہی۔ ان دونوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنا جج اور فیصل تسلیم کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ لے کر کثرت رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجمع عام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ بل اتفاق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثالث منتخب کر لیا گیا۔ بیعت کے موقع پر لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اس قدر ہجوم کیا، یہاں تک کہ ان کو منبر کے پاس ڈھانپ لیا۔ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں بلوائیوں و باغیوں کا زیادہ زور تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر زور دیا کہ وہ خلافت کی بیعت لیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ جب تک اہل مدینہ بیعت نہ کریں میں بیعت نہیں لوں گا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت عام ہوئے اور خلیفہ 4 منتخب ہو گئے۔ خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے کوفہ کے جامع مسجد میں نماز فجر کے وقت حملہ کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوفیوں نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرتے ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔
चनांचा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के बाद कोफियों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा को अपना खलीफा मुंतखब कर लिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा पर खिलाफत राशिदा का तेज 30 साला दौर खत्म हो जाता है। मुद्दत खिलाफत हजरत अबूबकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा खिलाफत 3 व 4 अशहर 2 साल 4 माह। मुद्दत खिलाफत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा खिलाफत 10 सनीन व नस्फा 10 साल 6 माह। मुद्दत खिलाफत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा खिलाफत 12 सन 12 साल। मुद्दत खिलाफत हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा खिलाफत 4 सनीन व 9 अशहर व अय्यामा 4 साल 9 माह और कुछ दिन। मुद्दत खिलाफत हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा फ़क़ाम फ़ैहा 6 अशहर व अय्यामा 6 माह और कुछ दिन। खिलाफत हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा 40 में कोफियों से तंग आकर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा से सुलह कर लेते हैं, जिस बना पर उस साल को उम्मत मुसलमा के लिए सुलह का साल करार दिया जाता है। इससे आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी पूरा होता है कि मेरा बेटा हसन रज़ी अल्लाह अन्हा 2 मुसलमान जमातों में सुलह कराएगा। चनांचा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा ने सुलह के लिए एक सादा कागज पर अपनी मेहर और दस्तखत करके हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भेज दिया। आपने तमाम शराइत को मंजूर कर लिया। इसके साथ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और आपके तमाम साथियों ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर बैअत कर ली, जिससे पूरी मुल्क में अमन व ईमान कायम हो गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा ने 40 से लेकर 60 तक तकरीबन 20 साल हुकूमत की। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर खिलाफत 20 साल है और गवर्नरी का दौर भी 20 साल है। यजीद का दौर हुकूमत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कोफा की गवर्नर हजरत मगैरा बन शाबा रज़ी अल्लाह अन्हा की मशूरा पर अपनी बेटी यजीद को अपनी जिंदगी में खलीफा नामजद किया और उसके लिए बियात खिलाफत ली। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा के वफात के बाद 60 में यजीद के हाथ पर शामियों ने अहल मदीना और दूसरी सूबा जात ने यजीद के बियात खिलाफत की। यजीद की दूर खिलाफत में अजीम सानहा करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत का रौनमा हुआ। रिवायत वाक़या करबला के रावी अबू मुहन्नफ और हिशाम बिन मोहम्मद साहिब भी हैं, लेकिन वो काबिल एतबार नहीं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मनहाजुस सुन्ना में लिखते हैं, अबू मुहन्नफ व हिशाम बिन मोहम्मद बिन साहिब व अम्सालहुमा मिनल मारूफीन बिल कज़्ब इंद अहलिल इल्म। मिफ्ताहुस सिन्नास 13 मीज़ानुल इत्तिदाल ज़हबी 550 अबू मुहन्नफ और हिशाम और उन जैसी रावी अहल इल्म के नजदीक झूठी हैं। अबू मुहन्नफ अपने किताब मक्तल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा में ऐसी अजीब व गरीब रिवायात बयान करते हैं जिनको अक्ल भी तस्लीम नहीं करती। मसलन लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हो गई तो उनका घोड़ा हनहनाने लगा। वो मैदान करबला में मकतूलीन की लाशों के पास से गुजरता हुआ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की लाश के पास आकर ठहर गया। उसने अपनी पेशानी खून में डुबो दी। वो अगले पांव से जमीन पर ठपकने लगा और इस कदर जोर से हुनहनाने लगा कि उसकी हुनहनाहट से मैदान करबला गूंज उठा। इब्न साद की नजर जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की घोड़ी पर पड़ी तो उसने कहा, खुदा की मार हो, तुम पर उसी पकड़कर मेरे पास लाओ। ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमदा घोड़ों में से है। लश्करियों ने उसका ताक़ब किया। जब घोड़ी ने देखा कि लोग उसे पकड़ना चाहते हैं तो वो अपने पांव जमीन पर ठपकने लगा और अपनी मुदाफात करने लगा, हत्ते कि उसने बहुत से आदमियों को हलाक कर दिया और कई शाहसवारों को घोड़ों से गुरा दिया, मगर लश्करी उस पर काबू ना पा सकी। दूसरी जगह लिखता है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा जिस रोज शहीद हुए आसमान से खून की बारिश हुए। मक्तल अल हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा 119 मज़कूरा बाला नमूना से पता चलता है कि अबू मुहन्नफ रावी अपनी तरफ से बातें बना लेता है, लहजा काबिल एतबार रावी नहीं है। वाक़या करबला का रावी अमार दहने वाक़ा करबला का रावी अमार दहने काबिल एतबार है। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखते हैं, सुदूक या तशिया अमार दहने बहुत सच्चा रावी है और शिया अकीदा रखता है। तक़रीब तहज़ीब 152 साहिब तनक़ीह मकाल भी लिखते हैं, कान शिया सिक अमार दहने शिया अकीदा रखता है लेकिन काबिल एतबार था।
हजरत अबू जाफर मोहम्मद बाक़िर रहमहुल्लाह का बयान अमार दहनी रवायत करते हैं कि उसने मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन से अर्ज किया, यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमहुल्लाह से, कि मुझसे वाक़या करबला ऐसी अंदाज से बयान करें गोया आप खुद वहां मौजूद थे और वो सामने हो रहा है। इस पर हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमहुल्लाह ने वाक़या करबला इस तरह बयान किया। बैअत यजीद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के वक्त वलीद बन इतबा बन अबे सफियान हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का भतीजा और यजीद का चचीरा भाई मदीना मनूरा का गवर्नर था। उसको यजीद ने हुक्म भेजा कि वो मेरे लिए बैअत लें। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया गया तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे सोचने की मोहलत दें और नरमी इख्तियार करें। चनांच हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मोहलत लेकर मिकमाज़मा तशरीफ ले गए। कोफियों की खत कोफियों को जब इमाम मुसल्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के आमद की खबर हुई तो खफिया तौर पर उनके पास पहुंचे और 12,000 कोफियों ने उनके हाथ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बियात की। गवर्नर कोफा नअमान बिन बशीर की माजूली इमाम मुसल्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर जब 12,000 कोफियों ने बैअत की तो यजीद के एक भी खवाह अब्दुल्ला बिन मुस्लिम हजरमी ने नअमान बिन बशीर को कहा कि देखो शहर की सूरतहाल किया है, या तो कोफा वाली आपको कमजोर समझते हैं या आप वाक़याता कमजोर हैं। हजरत नअमान का जवाब, मेरी ऐसी कमजोरी जो इताअत-इल्लाही में हो इस ताकत से बेहतर है जो खुदा की नाफरमानी में हो। जिस काम पर अल्लाह ने पर्दा डाला उसको क्यों जाहिर करूं। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम हजरमी ने उसकी शिकायत यजीद के पास लिख कर भेज दी। यजीद ने अपने एक आजाद करदा गुलाम सरहून से मशूरा किया। इसने कहा कि अगर आपके बाप मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदा होते तो आप इसकी मशूरा पर अमल करते। यजीद ने कहा कि जरूर अमल करता। सरहून ने मशूरा दिया, फौरे तौर पर अबी दाल्ला बन ज़याद को कोफा का गवर्नर मुकर्रर कर दो। हालांकि सूरत हाल ये थी कि यजीद उन दोनों अब्न ज़याद को बसरा की गवर्नरी से महजूल करना चाहता था, मगर सरहून का मशूरा कबूल करते हुए नामान बिन बशीर को महजूल कर दिया और अब्न ज़याद को कोफा का गवर्नर बना दिया और कहा कि कोफा पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को तलाश करो, अगर मिल जाए तो उसे कत्ल कर दो। आबेदल्लाह बिन ज़ियाद कोफे का नया गवर्नर अब्न ज़ियाद बसरा के चंद साथियों के हमरा इस हालत में कोफा आया कि इसने ढाटा बांधा रखा था। वो जिस मजलिस से भी गुजरता सलाम करता। लोग जवाब में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु समझकर वालेक या अब्न रसूलिल्लाह, ऐ रसूल की बेटी आप पर भी सलाम हो, जवाब देते। कोफी समझते थे कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए हैं। यहाँ तक कि अब्न ज़याद कसर अमारत में पहुंच गया। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु की तलाश अब्न ज़याद ने कोफा पहुंचकर अपने गुलाम को 3,000 दरहम दिए और कहा, जाओ इस शख्स का पता लगाओ जो कि कोफा वालों से बैत लेता है, लेकिन अपने आप को जाहिर करो कि मैं हम्स का बाशिंदा हूं और बैत करने आया हूं और ये रकम पेश खिदमत है, आप अपने मिशन में सिर्फ कर सकें। गुलाम इस हैला से ये इस शख्स तक पहुंच गया जो बैत का एहतिमाम करता था। जब इसने रकम पेश की और बैत का इरादा जाहिर किया, इस आदमी ने खुश हो कहा कि तुम्हें हदायत का रास्ता नसीब हुआ है, लेकिन अफसोस कि अभी तक हमारा काम पख्ता नहीं हुआ। ताहम वो इस गुलाम को मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ले गया। इमाम मुसल्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे बैत ले और रकम भी कबूल कर ली। अब वो यहाँ से निकला और सैदा अब्न ज़याद के पास पहुंचा और सब कुछ उसको बतला दिया। उधर हजरत मुसल्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु इब्न ज़याद की कोफ आमद से औसजा का घर छोड़कर हाने बिन अरवा के घर मुंतकिल हो चुके थे और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को पैगाम भेज दिया था कि 12,000 कोफियों ने बैत कर ले है, आप कोफा तशरीफ ले आए। हाने बिन अरवा की गिरफ्तारी जब अब्न ज़याद को पता चल गया कि मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु हाने बिन अरवा के घर है, इसने कहा, क्या बात है कि हाने मुझे मिलने नहीं आए। मोहम्मद बिन अशास चंद साथियों के साथ हाने के दरवाजा पर आए। हाने अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने आपको याद किया है, लहजा आपको गवर्नर के पास जाना चाहिए। चनाचा उनके जोर पर हाने अब्न ज़ियाद के पास पहुंचे। इत्तेफाक से उस वक्त काजी शरीह भी अब्न ज़ियाद के पास मौजूद थे।
उनसे मुखातिब होकर कहा, देखो इस अहमक की क़ज़ा हमारे पास ले आई है। हाने ने सलाम कहा। अब्न ज़ियाद बोला, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ है? हाने बिन अरवा ने कहा, मुझे इल्म नहीं है। इस पर अब्न ज़ियाद ने 3000 दरहम वाले गुलाम को सामने कर दिया। हाने बालकर लाजवाब हो गया और कहा, मैंने उनको बुलाया नहीं, वो खुद बखुद मेरे घर में आ गई हैं। अब्न ज़ियाद ने कहा कि उसको हाजिर करो। उस पर हाने पस वो पेश किया, जिस पर अब्न ज़ियाद ने अपनी करीब करके उस जोर से छेड़े मारे जिससे उनके बहनवे पहुंच गए, और फिर तलवार से वार करना चाहा लेकिन कामयाब न हो सका। अब्न ज़ियाद ने कहा कि अब तेरा खून हलाल है, और उसको कसर अमारत के एक हिस्सा में कैद कर दिया। इस वाक़ा की इत्ला पर हाने के कबीला ने कसर अमारत पर हमला कर दिया। अब्न ज़ियाद ने काजी शरीह के जरिया उनको पैगाम भेजा कि हाने को मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु का पत वो तहकीक करने के लिए रोका है, खतरे की कोई बात नहीं। और काजी शरीह के साथ भी एक गुलाम को भेज दिया कि देखो ये लोगों को क्या कहते हैं। काजी शरीह लोगों की तरफ जाते हुए हाने के पास से गुजरी तो उसने कहा कि मेरे बारे में अल्लाह से डरना, अब्न ज़ियाद मेरे कत्ल की दरपे है। ताहिम काजी शरीह ने अब्न ज़ियाद की बात कहकर मुतमईन कर दिया। ये बात सुनकर लोग मुतमईन हो गए। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु का खरूज मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को जब इस हंगामे का इल्म हुआ तो खरूज का ऐलान कर दिया। चनांच 4000 लोग, एक रिवायत के मुताबिक 40,000 आपके पास जमा हो गए। इनको जंगी तरीका से तरतीब देकर कसर अमारत की तरफ रवाना कर दिया। अब्न ज़ियाद को इत्तला हुई तो उसने सरदार उन कोफा को बुलाया। जब लश्कर कसर अमारत तक पहुंच गया तो सरदारान कोफा ने अपनी अपनी कबीला को समझाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता खसकना शुरू हो गए। रात की अंधेरी तक कोई बाकी न रहा। कोफियों की गुदारी और अमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा सबने धूक दिया है और तुन्हा रह गई हैं तो रास्ता पर चल पड़ी। एक मकान पर पहुंची, अंदर से एक खातून निकली। आपने पानी मांगा, इस औरत ने पानी पिला दिया और वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर बाहर आई। आपको दरवाजा पर देखकर कहा कि ए अल्लाह की बंदी, तेरा इस तरह बैठना मशकूक है, यहाँ से चले जाओ। आपने कहा मैं मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु हूं, तुम मुझे पनाह दोगे? इसने कहा आ जाइए। आप अंदर चले गए। जब इस औरत की लड़की मोहम्मद बिन अशास को पता चला कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रहमा अल्लाह उनकी घर हैं तो उसने फौरा अब्न ज़ियाद को इत्तला कर दी। अब्न ज़ियाद ने उसकी हमराह पुलिस रवाना कर दी। पुलिस ने जाकर मकान का मुहासरा कर लिया। मुस्लिम इत्तला मिलते हैं तलवार सौंध कर बाहर निकलाए, मुकाबला का इरादा किया, लेकिन मोहम्मद बिन अशास ने रोका और हिफाजत की जिम्मेदारी उठा ली। हजरत मुसल्लिम को पकड़कर अब्न ज़ियाद के पास ले गए। चनांचा अब्न ज़ियाद की हुक्म से कसर अमारत की छत पर ले जाकर मुस्लिम को कत्ल कर दिया। अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन। और उनकी लाश बाजार में लोगों के सामने फेंक दी और हाने बिन अरवा को कोड़ा करकट के जगह घसीटते हुए सूले पर लटका दिया। हजरत अमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हु के मिक से कोफ की तरफ रवांगे हजरत मुस्लिम का खत अमाम हसीन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा कि 12,000 कोफियों ने बैत कर ले है, लिहाजा आप जल्द कोफा पहुंच जाएं। अमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मिक से कोफा की तरफ रवाना हुए। आप कादसिया से 3 मील के फासले पर थे कि हरबन यजीद तमीमी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की काफिले से मिला। उसने कहा, कहाँ जा रही हो? आपने फरमाया कोफा। उसने कहा, वहां किसी खैर की तवक्का नहीं है, आपको यहां से वापस हो जाना चाहिए। फिर उसने कोफियों की बेवफाई और हजरत मुसल्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु की कत्ल का वाक़ा सुनाया। सारा वाक़या सुनकर हजरत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वापसी का और की, लेकिन मुसल्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु के भाइयों ने कहा, हम बदला लेंगे या शहीद हो जाएंगे। इस पर अमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी बगैर जिंदगी का कोई लुत्फ नहीं है। अब सब कोफा की तरफ रवाना हो गई। जब आपको अब्न ज़ियाद की फौज का हर अव्वल दस्ता नजर आया तो आपने करबला का रुख कर लिया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की करबला आमद। जब आप करबला में पहुंची, खैमी निसब कर लिए। इस वक्त आपके साथ 45 सवार और 100 के करीब पैदल थी। इस वक्त अब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को बुलाया कि आप हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुआमला में मेरी मदद करें। इसने माजरत की, लेकिन अब्न ज़ियाद न माना।
इस पर उमर बिन साद ने एक रात सोचने की मोहलत ले। उमर बिन साद ने सोचने के बाद आमादगी का इजहार किया। उमर बिन साद करबला में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की माकूल तजवीज़ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि 3 बातों में से एक मान लो। 1, मुझे किसी इस्लामी सरहद पर जाने दो। 2, मुझे मौका दो कि मैं बराह रास्त यजीद के पास पहुंच जाऊं। 3, जहां से आया हूं वहां वापस चला जाऊं। अब्न साद ने तजवीज कबूल करके अब्न ज़याद के पास भेज दी। उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। बस एक बात की कि हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा बियात करें। उमर बिन साद ने हर बात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुंचा दी। उन्होंने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। इस पर लड़ाई छड़ गए। आपके सब साथी मजलूमाना शहीद हो गए। 10 से जायद जवान घर के थे। इसी असना में एक तीर आया जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के छोटे बच्चे पर लगा जो गोद में था। इससे खून को साफ करते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह, हमारे और उनके दरमियान फैसला फरमा। जिन्होंने पहले बुलाया अब हमें कत्ल कर रही हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद तलवार हाथ में ले और मर्दाना वार मुकाबला किया और लड़ती लड़ती शहीद हो गए रज़ी अल्लाह तालिया अन्हा। और जिस शख्स के हाथ से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद हुए वो कबीला मुजहज का आदमी था। अगरचे उसकी बारी में और भी अकवाल हैं। हजहानी बिन अरवा का वही कबीला जिसने कसर इमारत पर चढ़ाई कर दी। यह शख्स आपका सर तन से जिदा करके अब्न ज़ियाद के पास लेकर गया। उसने सर मुबारक यजीद के पास भेज दिया। उधर उमर बिन साद भी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के अहल खाना को लेकर अब्न ज़ियाद के पास पहुंच गया। उनका सिर्फ एक लड़का अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ीनुल आबिदीन बच्चा था, जो इस रवायत के रावी अबू जाफर बाकर के वालिद थे। अल-असाबा हस 17 तारीख तबरे की रवायत में है कि सनान बन एंस नखई ने शहीद किया और खोले लजबही ने सर काटा। तारीख तबरे 14 और वो ये शार पढ़ता था, औकर रकाबे फज वज़हबा कद क़तलत मुलिक अलमुहजबा क़तलत खैर अन्नास अम्मा वाबा व खैर हम इज़ यंतसिबून निसबा। मेरी ओंट सोने और चांदी से लादो, मैंने ऐसे बादशाह को कत्ल किया है जिस तक रसाई मुश्किल है। मैंने ऐसे इंसान को मारा जिसके माँ बाप सबसे अफजल हैं और नसब के एतबार से बेहतर है। खवातीन वो बच्चे यजीद के दरबार में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के बच्चे अफराद खाना यजीद के दरबार में पहुंची तो दरबारियों ने फतह की मुबारकबाद दी। दरबार में से एक शख्स ने जरात करके एक लड़की की तरफ इशारा करके कहा कि अमीर अल-मोमिनीन ये मुझे दे दो। ये सुनकर ज़ैनब बन अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह की किस्म ये नहीं हो सकता कि बजज उसकी यजीद दीन अल्लाह से निकल जाए। जब दोबारा इस शख्स ने कहा तो यजीद ने उसको डांटा और उन सब को अपनी महल में भेज दिया। अहल बैत के मदीना रवांगे यजीद ने सबको तैयार कराकर मदीना रवाना कर दिया। जब ये मजलूम काफिला मदीना पहुंचा तो खानदान अब्दुल मतलब के एक खातून रोते हुए आए और ये अशार पढ़ती थी, माज़ा तक़ूलून अन क़ाल नबी लिकम माज़ा फ़अलतुम व अंतुम अख़रल उमम बअतरती व बहली बाद मुफ्तक़दी मिनहुम असारे व मिनहुम दरजू बिदम मा कान हज़ा जज़ाए इज़ नसहत लिकम अन तख़ल्लफ़ूनी बिसौफ़ी ज़वी रहम। तारीख तबरे 257 अगर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा तो क्या जवाब दोगी कि तुम आखिरी अमत होकर मेरे वफात के बाद मेरे घराने के साथ क्या सलूक किया है। इनमें कुछ कैदी हैं और कुछ खून में लथड़े हुए हैं। मैं जिंदगी भर जो तुम ही नसीहत करता रहा तो उसकी ये जजा न थी कि तुम मेरे रिश्तेदारों से ऐसा सलूक करते। नोट, हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह अम्मार दहने की ये रवायत अल-असाबा फे तमीज़ सहाबा में नकल करने बाद लिखते हैं, क़द सन्फ़ जमाअ मिनल क़ुदमा फे मक़तल अल-हसीन तसानीफ़ फ़े हल-गस व समीन व सहीह व सक़ीम फ़े हाज़िहिल क़ज़्ज़ ती सक़तहा गने अल-असाबा हस 17 मुतक़द्दिमीन ने शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा पर बहुत किताबें लिखी हैं जिसमें रतब व याबिस भर दिया है, लेकिन ये रवायत जो मैंने बयान की ही तमाम तसानीफ से बेनियाज कर देते हैं। मुहर्रम अल हराम में तमाम मुसलमानों को अखूत व भाईचारा का मुजाहरा करना चाहे और मुल्क व मिल्लत की हिफाजत व बका और क़याम अमन के लिए तकरीर व तहरीर में तहकीकी व इल्म मुसब्बत और मुहज़्ज़ब अंदाज इख्तियार करना चाहे, यही मकसूद फितरत है। यही रमज मुसलमान अखूत